Hi and hello everyone. Welcome back to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Today in this video we will do quadrilateral of class 9, chapter number 8, and exercise is 8.1, in which we will do question number 1 to 6. So now let's start. First question. The angles of quadrilateral are in the ratio 3 is to 5 is to 9 is to 13. Find all the angles of the quadrilateral. It means here ratio of the quadrilateral is given. Ratio of the angles. Ratio of the angles of quadrilateral is 3 is to 5 is to 9 is to 13. So now let the angle be 3x, 5x, 9x and 13x. ये हमने इनको एंगल्स को अज्यूम कर लिया एज ए 3x, 5x, 9x एंड 13x. अब देखिए sum of the angles of quadrilateral is 360 degree. This is the property of quadrilateral, like your sum of the angles of triangle is 180 degree. Same here, sum of the angles of quadrilateral is 360 degree. So 3x plus 5x plus 9x plus 13x equal to 360 degree. Sum of all this is 30x, that is equal to 360 degree. Now x would be equals to 360 degree upon 30 equals to 12 degree. We find it here value of x. हमने यहाँ पर x की value find कर ली है. Now we will find all the angles. Angles are 3x, put the value of x, 3 into 12 degree, 36 degree. Then 5x, 5 into 12 degree, 60 degree. Then 9x, 9 into 12 degree, 108 degree. And then 13x, 13 into 12 degree, 156 degree. Now let's move on the question number 2. Now in question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Here it is a parallelogram ABCD, in which diagonal AC and BD are equal. यहाँ पर दिया हुआ है कि डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल हैं. आपको ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल है. तो अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, AC इक्वल टू BD जो कि हमको दे रखा है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. नाउ AB इक्वल टू BA जो कि नीचे देखिए बेस है, वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर. Now third, AD equal to BC. These are the opposite sides of parallelogram and that's are equal. Parallelogram के अंदर opposite sides equal होती हैं as well as opposite angles भी equal होते हैं. So now by these three conditions, these two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle BAD by triple S rules, side, side and side. Now angle ABC, angle B of triangle ABC and angle BAD, angle A of triangle BAD, both are equal because of CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Congruent means when two triangles are of similar shape and size. In this case all parts would be equal, angle, sides, that would be equal. So these two angles are equal. Now let's do some other thing. In the parallelogram ABCD, AD and BC is parallel, opposite side parallel hai, and AB is here transversal. Transversal means when a line intersecting two other line. Therefore angle ABC plus BAD equal to 180 degree. यहाँ पर ये दोनों जो एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल, जिसकी प्रॉपर्टी है कि इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल सम इज 180 degree. Here sum of co-interior angle on same side of transversal is 180 degree because AD and BC both are parallel and here AB is transversal. Now angle ABC plus angle ABC, because angle BAD जो अभी हमने प्रूव करा था that is equal to ABC, दोनों एंगल इक्वल हैं. तो यानी ABC यहाँ पर हो गया 2 times, तो 2 times of angle ABC equal to 180 degree. So angle ABC equal to 180 upon 2, 90 degree. Opposite angles of parallelogram are equal. This is one of the property of parallelogram. So
Here angle ABC is 90 degree, opposite of this is BCD, and ADC also equal, and that is ADC, opposite of this is ABC. So here ABC equal to ADC and BAD equal to BCD. All angles are of 90 degrees. So here we have proved that this parallelogram is a rectangle. यानी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी अगर 90 डिग्री होता है तो यानी वो है रेक्टेंगल. अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस. यानी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल्स. तो आपको प्रूव करना है कि ये है रोम्बस. In this figure, diagonal AC and BD bisect each other at right angle. अब दो डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो होता है पैरेललोग्राम. ये हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको ऑलरेडी दे रखा है कि OA इक्वल टू OC बिकॉज टू डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, एंड OB इक्वल टू OD, एंड देन AOB angle AOB equals to angle BOC equals to angle COD equal to angle DOA इक्वल्स टू 90 डिग्री. यानी जो आपस में चारों एंगल जो फॉर्म हुए हैं ये सारे एंगल्स हैं 90 डिग्री. यानी दोनों डायगोनल्स जो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं वो हैं 90 डिग्री. अब हम बात करते हैं इसमें ट्रायंगल AOB और COD की. एंगल AOB एंड COD. इन दिस O इक्वल टू OC जो हमें दे रखा है, बाइसेक्शन करते हैं ये दोनों डायगोनल्स आपस में, एंड OB इक्वल टू OD ये भी बाइसेक्ट है, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स. इसका मतलब हमारे पास 3 कंडीशंस हो गई. अभी 3 कंडीशंस से ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल साइड SAS रूल. Therefore, like if triangles are congruent, then part would also be equals. So here angle OAB is equals to angle OCD. ये आपके CPCT है, corresponding part of congruent triangle. And AB equal to CD, ये जो opposite side है इसके अंदर ये भी आपस में equal हैं क्योंकि ये है triangles का part. अब यहाँ पे हम देखते हैं साइड AB एंड CD विथ ट्रांसवर्सल AC. यानी AB और CD और ट्रांसवर्सल है AC. अभी हमने प्रूव करा था OAB इक्वल टू COD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं. सो AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू CD. यानी जो पैरेलल्स लाइन होती हैं उसमें पैरेलल लाइन के अगर ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. ठीक इसका वाइस वर्सा होता है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं. अब जैसे इसमें Z का शेप बन रहा है तो यानी ये एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. यानी इसमें एक साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है जो AB और CD है. तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम हुआ. अब हम देखते हैं ट्रायंगल AOB एंड BOC. अब ये दोनों ट्रायंगल हैं AOB एंड BOC इन विच O इक्वल टू OC जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एंड एंगल AOB इक्वल टू BOC ये राइट एंगल है, एंड OB इक्वल टू OB एक कॉमन साइड है. तो इससे दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए. तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय SS रूल साइड एंगल साइड. सो अकॉर्डिंग टू दिस AB इक्वल टू BC, ये जो दो साइड हैं AB और BC इस क्वाड्रिलेटरल की यानी पैरेललोग्राम की, ये दोनों इक्वल हैं. अब हम ये प्रूव कर चुके ABCD तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, यानी AB के अपोजिट में है साइड DC, ऐसे ही BC के अपोजिट में है साइड AD यानी DA. ये दोनों हैं इक्वल क्योंकि ये साइड्स हैं पैरेललोग्राम की. अब आपस में चारों फ्री साइड हो गई इक्वल. AB equal to BC equal to CD equal to DA. All sides are equal in a rhombus. So this quadrilateral
is a rhombus. ABCD is a rhombus. Now question number 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. यानी वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो स्क्वायर और रोम्बस दोनों के बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल. रोम्बस के डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं बट स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं. अब जो हमारे पास फिगर है, देखिए इस फिगर में ABCD स्क्वायर है जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड एंगल ABC एंड D ऑल आर ऑफ 90 डिग्री. अब इसमें हम आते हैं ट्रायंगल ABC एंड BAD. ABC एंड BAD. AD equal to BC, these are the sides of a square. Now AB equal to BA, ये इसमें कॉमन साइड है जो कि आप देख रहे हैं बेस नीचे की तरफ AB एंड BA. अब एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD, यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये चारों जो एंगल हैं ये स्क्वायर के एंगल हैं जो कि 90 डिग्री होते हैं, और यहाँ पे हमारे एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल्स हैं 90 डिग्री के. इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल हुए ये हुए कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SAS. सो नाउ AC इक्वल टू BD. AC और BD इस स्क्वायर के डायगोनल हैं, तो बाय CPCT रूल दीज आर इक्वल. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर. ये हमारा प्रूव हो गया कि डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं. अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट में. अब इसमें हम करते हैं ट्रायंगल AOB एंड COD के बारे में बात, इन विच AB इक्वल टू CD, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, बोथ आर इक्वल, एंड AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, एंड AC एंड BD ये दोनों आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ से ये इस जो पैरेलल लाइन है इसको भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये है ट्रांसवर्सल. इसलिए यहाँ पर एंगल DCO इक्वल्स टू BAO. देखो DCAB ये शेप बनना अपना Z का, यानी ये दोनों एंगल हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब इसके बाद अपन इसकी दूसरी बात करते हैं CDBA. तो ऐसे CDO और ABO ये दोनों एंगल भी हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि शेप बना रहे हैं यहाँ पर Z का. तो इस हिसाब से जो दोनों ट्रायंगल हुए, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by ASA angle side angle rule. Therefore, OA equal to OC and OB equal to OD. Diagonals of a square bisect each other. Now, in triangle AOB and triangle BOC. अब हम बात करते हैं इसमें triangle AOB और BOC के बारे में. In which OA equal to OC, जो अभी हमने प्रूव कराई है कि दोनों आपस में डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. OB एंड OB बोथ आर इक्वल, क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, एंड AB इक्वल टू CB, ये है साइड्स ऑफ स्क्वायर. इसका मतलब ये तीनों साइड हो गई इक्वल. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय SSS रूल. सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC. AOB एंड एंगल BOC बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अब यहाँ पर हम देखते हैं AC लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन है, और इसी स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल हैं AOB और BOC. इन दोनों का अगर सम करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर हैं, यानी ये जो दोनों एंगल हैं ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर. एंड AOB इक्वल टू BOC जो अभी हम प्रूव कर ही चुके हैं पहले, यानी put the value of BOC equal to AOB. So AOB angle here 2 times of angle AOB equals to 180 degree. So 180 degree divided by 2, that is equals to 90 degree. So angle AOB is 90 degree and that is equal to BOC 90 degree. Now see, AOB equals to COD because both are vertically opposite angle, तो ये भी एक 90 डिग्री हो गया.
and same here, BOC equal to AOD, that is also 90 degree vertically opposite angle. So therefore all angles AOB and angle BOC and angle COD and angle AOD that are equals to 90 degree. It means diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करा था डायगोनल्स आर इक्वल, इन सेकेंड पार्ट डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, and in third part we proved that these are bisecting each other at 90 degree. It means right angles. Now question number 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. यानी यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और हमको शो करना है कोई स्क्वायर। ऐसे भी हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में करा था, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है। अब हमें इसको रिवर्स के अंदर प्रूव करना है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD यानी डायगोनल यहाँ इक्वल दे रखा है आपको, एंड बाइसेक्ट ईच अदर यानी OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD एट राइट एंगल्स. It means all angles AOB, angle BOC and angle COD and angle AOD is equals to 90 degree. अब हमको प्रूव ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज़ ए स्क्वायर. अब बात करते हैं अपन ट्रायंगल AOB एंड BOC. एंगल AOB एंड BOC जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था. O इक्वल टू OC गिवन, OB इक्वल टू OB कॉमन साइड, and angle AOB equals to angle BOC right angle. So these two triangles are congruent triangle by side angle side SAS rule. Therefore AB equal to BC by CPCT, corresponding part of congruent triangle. अब आते हैं अपन दूसरे ट्राइंगल पे BOC एंड COD, यानी सेम जैसे हमने लास्ट में करा था सेम मेथड. OB इक्वल टू OD गिवन है, OC इक्वल टू OC कॉमन साइड है, एंड BOC एंगल BOC एंड एंगल COD बोथ आर ऑफ राइट एंगल यानी 90 डिग्री. इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है और इससे ये हुआ कि BC इक्वल टू CD. सिमिलर टू दैट वी विल डू इन अदर ट्राइंगल COD एंड एंगल AOD. OC equal to OA, OD equal to OD, and angle DOC equal to angle DOA. So same here, triangle both are congruent. Triangle DOC is congruent to triangle DOA. So CD equal to AD. From first, second, and third, we find it that AB equal to BC equal to CD equal to DA. It means all sides of this quadrilaterals are equal. यानी सारी जो sides हैं ये equal हैं. अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर साइड इक्वल होती हैं सारी, इट मीन दैट इज रोम्बस. और रोम्बस होता है एक पैरेललोग्राम. अगर इन पैरेललोग्राम में भी साइड इक्वल होती है तो दैट इज रोम्बस. अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC एंड BAD की. जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस में करा था, ये BC इक्वल टू AD जैसे अभी हमने प्रूव करा था, सारी साइड स्क्वायर की इक्वल है, मतलब स्क्वायर नहीं है, अभी ये अपना रोम्बस है. अब AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA कॉमन साइड है, एंड AC इक्वल टू BD. ये जो AC और BD है डायगोनल, ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं. इट मीन दीज थ्री साइड्स आर इक्वल ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC and triangle BAD. So these two triangles are congruent by SSS rule. So here angle ABC equal to angle BAD by CPCT. Now AD पैरेलल टू BC, जैसे अभी हमने पहले प्रूव करा था कि ये रोम्बस है, रोम्बस पैरेललोग्राम है, तो ये अपोजिट साइड इसकी पैरेलल हुई. एंड एंगल ABC प्लस BAD इक्वल टू 180 डिग्री. These two angles sum is 180 degree because these two interior angles are on the same side of transversal. Or you can say one property is like adjacent angles of a parallelogram sum is 180 degree. Angle ABC plus angle BAD equal to 180 degree and angle BAD equal to angle ABC जो अभी हमने प्रूव करा था
तो अब उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यानी 2 टाइम ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ ए बी सी इक्वल टू angle ADC, that is equal to 90 degree, and angle BAD equals to angle BCD, that is also equals to 90 degree. It means all angles are of 90 degree, and earlier we proved that all sides are equal, that was in rhombus. So this quadrilateral ABCD is a square. Now in the next question, question number 6. Diagonal ratio of parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C. यानी ये जो आपके डायगोनल है AC, ये A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज C एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है. Now in the figure, diagonal AC of parallelogram ABCD bisects angle A. So angle CAD equal to angle BAC. अब इसको अपन मान लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2. यहाँ पर हमने नाम दे दिया है एंगल 1 एंगल 2. सो और हमने यहाँ पर दिया है ACB एंगल और एंगल ACD, इनको 3 एंड 4. AB पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल. AB DC के पैरेलल है और AC इसमें ट्रांसवर्सल है. सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Z का शेप बना रहा है. एंड AD पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम में इसमें अपोजिट पेयर पैरेलल है और AC यहाँ पर फिर ट्रांसवर्सल है, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. सो ऑल एंगल्स आर इक्वल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. अब यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं. इट मीन AC ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को. सो एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ACD. सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, प्रूव ABCD इज ए रोम्बस. अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ABCD है पैरेललोग्राम, दिस इज ए रोम्बस. एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACD, जो अभी हमने प्रूव करा था. तो इन ट्रायंगल ADC, अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं ADC, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, यानी एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAD. अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं. इट मीन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी. बाय दैट AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD, and these two sides are adjacent sides of this parallelogram ABCD. Now in parallelogram, opposite sides are equal. So AD equal to CD, ये आपके एडजेसेंट साइड हुई. तब AD के इक्वल हुआ BC, इसके अपोजिट साइड, और DC के अपोजिट है अपने AB, यानी चारों साइड जो हैं AD BC CD AB, ये सब हो गई इक्वल. सो पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस. So this is also a property that in rhombus, diagonal bisects angle of vertices which it is joining, जहाँ पर इसको join करती है. AC diagonal bisecting angle A and angle C. BD diagonal bisecting angle B and angle D in rhombus as well as in square. So thank you everyone. Thanks for watching and reading this video. Thank you very much again.